Well, these are visuals coming in from Bihar. Prime Minister Narendra Modi is in Bihar. The Prime Minister just inaugurated the new campus of Nalanda University in Bihar's Rajgir. External Affairs Minister S. Jai Shankar and ambassadors of 17 nations attended the event, which has been organized for inauguration of the campus. Now, the new campus of the university is close to the site of the ancient ruins of Nalanda. This university was established through the Nalanda University Act 2010. The act provided for implementing a decision arrived at the second East Asia Summit held in the Philippines in 2007 for the establishment of the university. Remember, Nalanda University was established in the 5th century, which attracted students from all over the world. The ancient university flourished for 800 years before it was destroyed by the invaders in the 12th century. The new university started functioning in 2014 from a makeshift location with 14 students. Construction work on the university started in 2017. We have Amit joining us in the broadcast with more details. Amit, बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा मौका, जो सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आ रही। प्रधानमंत्री ने बस अभी न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन किया है और ये ऐसा मौका है कि भारत का जो इतिहास है लोगों को गौरवान्वित करने वाला, उसको दोहराने की जरूरत। देखिए, मुझे लगता है बहुत बड़ा मौका है। नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का शिलान्यास जो है 19 सितंबर को 2014 में सुषमा स्वराज ने किया था और अब ठीक उसके बाद जो कैंपस है, नेट कैंपस है, उसको समर्पित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये जो कैंपस है राजगीर की 5 पहाड़ियों में से एक वैभवगिरी की जो तलहटी है वहां पर बना हुआ है। करीब 1750 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है और प्रधानमंत्री ये मतलब अगर आप कहिए तो दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय में से है और उनकी एक अपनी महत्ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शुरू से अगर आप देखिए तो प्राचीन और जो भारतीय संस्कृति से जुड़ी चीजें हैं उनको फिर से जमीन पर लाना, उनको फिर से वो वैभव दिलाने की बात शुरू से उन्होंने कही थी। और इसीलिए जो अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय है वहां पर आप देखिए तो वो उसकी जो अपनी पहचान है, उसको जो पुरानी जो एक संस्कृति से जुड़ी जो चीज थी उसको फिर से जमीन पर उतारने का काम मोदी ने किया है। और आज अभी वहां पर मंच पर बैठे हुए हैं, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं और ये खास मौका है। मुझे लगता है ये बहुत ही खास मौका है जब नालंदा विश्वविद्यालय। बिल्कुल अमित, 17 देशों का सहयोग या सपोर्ट मिला हुआ है इसको। हमारे साथ बने रहिए आप अमित। हमारे साथ हिस्टोरियन कपिल जी भी जुड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर टाइम। वुड यू से revival of Nalanda when you look at these pictures today? You see, it is not just a revival of Nalanda. It is a revival of that wisdom of the ancient Indian Bharatiya civilization, which is being blended in the present context with the present developments. This is a very crucial aspect. That what Nalanda was famous for that at that time was not only for religion. Every aspect of sciences also was taught there. Astronomy was taught there, geography was taught there, many other aspects were taught there. And scholars from world over used to come over there. You see, one of the things which was very famous in the Western world at that time was to get a Shraman from Bharat. Shraman means the intellectual from Bharat, you know. So it is restoring that tradition that Bharat is moving ahead, taking its, and you see those who say that these ancient sciences are mythology and all is totally absurd, because so many things have been proved in relation to ancient sciences which Bharat gave to the world, to those that world where these civilizations were not even born. Absolutely. When Bharat was calculating decimal, Bharat was bringing in zero, Bharat was calculating the distances between the planets. So, and which have been now proved by modern sciences that those calculations were how accurate. So restoring that tradition, making a pride in the Bharatiyas that look what the modern world and Western. You see, I'll give you an example. Absolutely. This also in fact represents and reminds the world of India's golden history with these heritages taking center stage. Thank you very much, Kapil ji, for joining us on the broadcast. Let's go back to Amit. Amit, आप महत्व की बात कर रहे थे। भारत का जो एक गोल्डन एरा रहा, ये कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है। ये मुझे लगता है कि ये अपने इतिहास को फिर से जिंदा करने का जो प्रयास है,
ये मुझे लगता है इससे बड़े दिन कुछ नहीं होंगे। आप देखिए प्रधानमंत्री उन पुराने जो खंडहरों को देखा, वो याद दिलाता है उस दौर का जब शिक्षा के क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय के तौर पर भारत में आप समझिए कि कितना आगे था एजुकेशन को लेकर और पढ़ाई को लेकर, कि उस वक्त में ये बना था और वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती थी। और आज भी देखिए पूरे तमाम दुनिया के देश के लोग वहां पर, करीब 17-18 देश के लोग वहां पर प्रतिनिधि मौजूद हैं। ये दिखाता है कि उस समय दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय की क्या हैसियत थी, उस समय कितने दूर दूर से लोग उस समय भी पढ़ने आया करते थे वहां पर। और आज ये बता रहा है कि एक बार फिर से आप देखिए सबसे पुराने जो एक धरोहर के तौर पर, एक सभ्यता के तौर पर भारत की पहचान है, और वहां पर वो विश्वविद्यालय को फिर से जिंदा किया जा रहा है, नया कैंपस बनाया गया है। ये इसको एक आप कह सकते हैं कि पुरानी चीजों को फिर से सहेजने की कोशिश है, फिर से उसको एक बार पुराने इतिहास को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। और ये एक ऐतिहासिक पल है मुझे लगता है भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत की सभ्यता के लिए, कि वो फिर से नालंदा विश्वविद्यालय फिर से लोगों के लिए है। तमाम दुनिया के देश के लोग वहां पर पढ़ने जा रहे हैं, अपने आप को उस इतिहास से जोड़ेंगे, उस सभ्यता से जोड़ेंगे। और जिस सुनहरे इतिहास की आप बात करें केवल भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरे विश्व भर से लोग यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते थे। थैंक यू वेरी मच अमित फॉर गेटिंग अस द डिटेल्स। विल कीप ऑन गेटिंग योर रिएक्शंस ऑन दिस। वी मूविंग